مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا میرا خیال ہے انہیں تمہیں ایسے ہی کیتے آخیا ہونا ہے بھائی یہ ہونا ہی نہیں ہے، نہ دوڑ جانا ہے۔ سر جی دوسری گل سن لی سی جی؟ ہاں دوسری سن جی بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہو گیا سر جی، بہت شکریہ سارے بھائیوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی یہ ذرا سنیں۔ وعلیکم السلام سہل کالو۔ یہ حدیث شریف ایک ملی ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں صرف تھوڑی سی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس میں نماز کے دوران جب نماز جماعت ہوتی تھی تو کچھ رکعتیں نکل چکی ہوتی تھیں، تو بعد میں صحابہ کرام آ کے ملتے تھے، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو پہلے نماز میں شامل ہوتے تھے وہ نئے آنے والے ساتھی کو اشارے سے بتاتے تھے کہ ایک رکعت ہو چکی ہے یا 2 رکعتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہو، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے کیا کہا، قال فقال معاذ لا اراہ علی حال الا کنت علیہا، کہ میں تو اسی حال میں شامل ہو جاؤں گا جس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، میں بس شامل ہو جاؤں گا، اور جب نماز مکمل ہو جائے گی تو بقیہ میں پھر بعد میں ادا کروں گا۔ یہ اور بھی روایات سے یہ بات اسی طرح ملتی ہے۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی شامل ہو گئے۔ اب دیکھیں پہلے طریقہ کیا ہے کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں اشارے سے۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں تو انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی شامل ہوں گا جس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاذ قد سن لکم سنتا کذالک ففعلوا، کہ بے شک معاذ نے تمہارے لیے ایک سنت مقرر کر دی ہے، اس پر عمل کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بار کا عمل اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے دی۔ ہن تسی پھڑ لو ہاتھ دے وچ پولیس والا 6 نمبر دا چھتر تے چڑھ جاؤ انہاں دے مرضیاں دے مگر۔ میں کہا جٹ صاحب تگڑے وہ ایک واری دا عمل جیڑا انہوں سنت اسی بھی مننے ہیں، تے تہانوں میں تہاڈے گھروں دلیل دے تاکہ تہانوں ہضم ہو جائے۔ انہیں آخیا میں لینی نے مجھ آ رہا منہ ہی کٹ سڑیا، میں نلا تیار کیا 263 صفحہ 20 جلد ہے، پر انہیں آخیا میں نہیں دوائی اندر جان دینی، روحانی خزائن کیوں کھولی، روحانی خزائن کیوں کھولی؟ تو میں کیا کی ہو گیا روحانی خزائن کھل گئی؟ تے کوئی گرنیڈ دی پین نکل آئی ہے؟ وہ پھر انہوں نے 21 توپاں دی اسلامی دے کے نا تو سارے مگر انہیں اپنے لے لے، انہوں نے آخیا آ جاؤ بھائی مک گیا مناظرہ۔ میں آخیا تو کھڑا رہو، کھ نہیں تینوں ہوندا، میں تینوں حوالہ پہ دینا روحانی خزائن دا، نہیں ہے میں نہیں عامر بھائی تہانوں یہ مبارک جے کہ وہ خاتون جڑی ہے ادھر بیٹھی ہے احمد جٹ دی براڑ دے، اور مرزا غلام احمد دی جے، مرزا غلام احمد دی جے اے نعرے اتنے لگ رہے نے، اور وہ بالکل مسلمانوں اتنے تھلے گالا لگی ہے تے دین شارپ شوٹر کو بھی دین لگی ہے، مطلب کہ کھول کے سامنے آ رہی ہے ایسا ایسا۔ جی یہ رسکانی نو دے رہی کہ نہیں دے رہی؟ پتہ نہیں صاحب نو دا موقع ہی نہیں دیتا ہے اپنا عمر بھائی۔ مجھے بادشاہ سلامت سے ایک بات کرنی ہے۔ بادشاہ سلامت گل کرو جی، گل کرو۔ ہاں جی بادشاہ سلامت، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ بادشاہ سلامت، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عورت کی یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک گند کے اندر بٹا پھینکنا، کنکر مارنا، چھینٹے اپنے پر بھی پڑتے ہیں، تو وہ تو گند ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت وہ فتویٰ آپ کا کہاں پہ گیا جب آپ کہتے تھے کہ مرزائیوں کی براڈ پہ جا کے صفائیاں دینا، وضاحتیں دینا جو ہے وہ جہل مسلمان ہے؟ وہ فتویٰ آج آپ نے اس کے اوپر خود کیوں نہیں عمل کیا؟ کس بات کی صفائی دینے کے لیے؟ یہ جو آپ نے اپنی براڈ کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہوئے
उम्मे रुबाब के बारे में, गंद के बारे में एक बात कही थी कि सुन्नत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उस बात की वजाहतें आप मरज़इयों की ब्राड पे क्यों देने गए थे? जो कि जबकि आपका फतवा था कि मरज़इयों की ब्राडों पे वजाहतें देना और उनको सफाइयाँ देना जो है वो जाहल मुसलमानों का काम है। हाँ जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। असल बात ये है, अगर मिर्ज़ाई हम पर कोई शातियत का इल्ज़ाम लगाएं, और क्योंकि वो मुद्दई तो हो नहीं सकते ना इस केस पे कि शातियत का इल्ज़ाम वो हम पर लगाएं और वो मुद्दई बने और हम मुल्ज़म बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए जो बंदा उनको जाकर सफाई देता है कि हमने शातियत नहीं की, हमने गुस्ताखी नहीं की, उसको मैंने अमल को जाहिलाना अमल कहा है। अब जहाँ तक आज की बात है, आज तो मैं गया था कोई और बात करने, लेकिन जट ने कहा मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा कोई भी बात करनी है तुम कर सकते हो, लेकिन इन बंदों को सबको नीचे उतारो। तो उसने सबको नीचे उतार दिया। 8-9 बंदे थे बराड पे उसके बैठे हुए। तो उसने बात शुरू कर दी कि ये मैं जानना चाहता हूँ। उसने बार बार कहा कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस हदीस को समझना चाहता हूँ। तो मैंने उसको उसके घर से समझाया, लेकिन जैसे ही उसने रूहानी क़ज़ाइन की वो 20वीं जिल्द खुलती देखी है, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी, मैं नहीं समझना, मैं नहीं समझना, मैं नहीं समझना। इतनी बात है। नहीं बादशाह साहब, बात वहाँ पे भी तो यही हो रही थी कि आपने ये बात करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, तो ये गुस्ताखी का मामला तो सेम ही है। साहिल भाई एक मिनट बात कर सकते? एक मिनट, कमेटी चुप कर है, कमेटी चुप कर है। मेरे सामने मिर्ज़ाई कहे ना कि आपने गुस्ताखी की है, कभी भी मैं उसका वो फिक्रा बगैर जवाब दिए जाने नहीं देता। फौरन मैं उसका जवाब देता हूँ कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं। गुस्ताखी और इस्लामी मुकद्दसात और मुसलमान, इनका आपस में लेन देन, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मामे भी नहीं लगते इस बात के। गुस्ताखी सवेरे भी मुझे किसी ने कहा था, तो मैंने कहा ये मुसलमान जाने हम जाने, आपका क्या इस बात से लेना देना? शेख हादी की बिराट में ये बात है। नहीं, वैसे भी सफाई देने में और मंजी ठोकने में फर्क है। नहीं, वहाँ पर सफाई वाली कोई बात हो ही नहीं रही थी। वो तो कहता है मैं हदीस समझना चाहता हूँ, मैं ये हदीस समझना चाहता हूँ। वही तो कह रहा हूँ कि आपने तो वहाँ पे रूहानी खजान उसके सामने रखी है, उसकी मंजी ठुक गई है। तो मंजी ठोकने में और सफाई देने में तो बहुत फर्क है। अगर बाबर भाई ने रिकॉर्डिंग की है तो आप सुन, सफाई वाला वहाँ पर कोई मसला ही नहीं था। वहाँ पर सीधा वो कह रहा था कि मैं समझना चाहता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। मैं उसको समझा रहा था कि ये जो एक बार का अमल है उसको भी सुन्नत कहा जा सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहता है आपने इसको सुन्नत क्यों कहा? मैंने कहा भाई सुन्नत कहा जा सकता है इसको। जी अब मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? कर लो मैं जनाब बैठी जो ਵੱਡੇ जो लगे ने गल करन दे 2 मिनट तू रुक जा। तन्नू इन्नी केड़ी अग लगी है? रुक जा, करो अमर भाई तुसी इजाजत ही सुस्ते ता तू लुई ग्रांडे 4 तो 4 यो किसको मैं ये सिर्फ कहना चाहता था, अगर किसी का भी कोई भी मसला है तो वो अमर भाई का नंबर मौजूद है। एडी के डीपी लगा कर वो अमर भाई से सवाल वैसे भी कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तू रहन दे, जेदी मर्जी हो डीपी लाए सही है, बस चुप कर गया तू। ना ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। किबला ज़िया रसूल साहब आप हैं अभी? हाँ जी किबला इधर ही हैं। किबला, जब मैंने आपको कहा था कि इस गंदी औरत को चुप करवाएं, कुछ कहें इसको, किबला आपने मुझे कहा था कि नहीं छोड़े, गंद में जो है ना वो कंकर नहीं मारना, गंदी है, छोड़ दें इसको, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर ये दोबारा गंद के अंदर जाके कंकर क्यों मारने पड़ रहे हैं? नहीं है, मैंने तो नहीं कोई भी मारा, मैं तो अब नाम भी नहीं लिया उसका। ये तो पहले दिन से ये किबला जो हमारे हैं ना, ये पहले दिन से हमें यही कह रहे हैं कि गंद में चिकड़ मारना, पत्थर मारना है, ये भाई हमारा फैसला है। हमारे भाई को कोई गाली देगा और फिर मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़, देखें हमने, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, हमने उनसे 2 मामलात में मिर्ज़ाइयों से शर्त जीती हुई है, इनामी रकम जीती हुई है इस दौर में, और एक 1912 में अबुल्फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने जीती। उन मामलों में से किसी मामले को कोई ये बंदा कहे कि मैं मुसलमान हूँ और कहे कि मुसलमान हारे हुए हैं, उन 3 मामलात में से किसी को भी
हम तो उसकी ज़ुबान खींच के कुत्तों के आगे डाल देंगे, ऐसे सप की या सपनी की सर कुचल के रख देंगे। आप सारे पीछे हट जाए, मैं अकेला जाके उससे लड़ता रहूँगा। वो गंद हुआ या सफाई हुई? नहीं, जहाँ तक वो अनामी रकम वाली बात है उसके ऊपर तो मैंने दी कोई और तबसरा कहा नहीं किया। कि ये मुसलमान तो उसके हारे हुए ऊपर हैं। उसके ऊपर तो कोई तबसरा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफार्म पे हर जगह पे मुसलमान ही जीतते हैं, उसके अंदर तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मैं तो समझा था कि उसके ऊपर तो बिल्कुल वाज़ेह फतवा आएगा, लेकिन आपने तो जो फतवे की जो है अपने ही फतवे की तावील कर दी है कि जी मैं तो इस वजह से गया था और ये सफाई देनी थी, तो वो तो मैं फिर उसके ऊपर खामोश हो गया कि मैं इस बात को मुझे बढ़ाना नहीं चाह रहा। लेकिन फिर दूसरे लोगों के भी तावील जो है ना वो काबिले सुननी चाहिए, उनको भी उसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरह की आपकी अगर कोई बंदा भाईजान कहे ना कि हम सफाई नहीं दे रहे, तो मैं क्यों किसी पर इल्ज़ाम लगाऊंगा? किसको मैंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि वो वहाँ पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सफाई नहीं दे रहा था, और मैंने बेजा अपने किसी मुसलमान भाई के साथ जुल्म ज़्यादती की? बताएं वाक़या। किबला आपको याद होगा कि आपने वहाँ पे अमूम के अंदर हर मुसलमान को कहा था कि जो यहाँ पे बैठे हैं सब जो समझदार मुसलमान है वो यहाँ से निकल जाएं, जाल मुसलमान यहाँ ही रहें। ये कहा था आपने। कहाँ की बात था? ये ट्रुथ सर्चर की ब्राड के ऊपर हाँ, मैं तो वहाँ गया ही नहीं। मेरे ख्याल से ये अबू बकर मीर भाई आपने नीचे कमेंट किया था किबला। मुझे नहीं याद, लेकिन अगर किया भी हो तो ठीक है। यूसुफी भाई की और अबू बकर भाई की बात मेरी ही बात है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, या मैंने भी अगर कहा है तो यही कहा होगा कि यहाँ से निकले। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है कि कोई खातून जब तक वो नहीं, वहाँ कोई मुसलमान सफाई देने तो नहीं गया था। अच्छा, उसकी बात मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे जो हुआ है ना वो मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे छोटी सी बात मैं कर लूँ, फिर आप बताएं अबू बकर भाई। छोटी सी बात ये है कि वो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, और हमारा एक और भी भाई शामिल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझसे बड़ी माजरत कर ली, तो अब बदनाम करना मुनासिब नहीं। उनकी भी उसमें गलती थी। वह आप सारे भाई इस गलती में पड़ गए थे कि आज क्योंकि सयाल, वो क्या नाम है उनका, सयाल साहब की गलती है, तो आज हम यहाँ पर उसकी मजम्मत करेंगे। अब खातून जो है वो ट्रुथ सर्चर बहन है, वो मसला नहीं है, आज भी वो हमारी बराड पे आई थी। उनका जो एहतराम बहसीयत खातून के एहतराम वो आज भी हमारी आंखों में उतना ही है। लेकिन जब तक उनकी आइडेंटिफिकेशन जमात अहमदिया के साथ मुंसलिक है, हम उनको रेफरी बना के उनके मुंह में विसल नहीं दे सकते कि आज आप बराड लगाएं मुसलमानों के खिलाफ और विसल बजा के बराबर करें कि उसने आजम साफी ने गुस्ताखी की थी, आज मुसलमानों ने गुस्ताखी कर दी, बराबर हो गया। ना, तौबा तौबा तौबा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुसलमान गुस्ताखी के खुद जिम्मेदार हैं, पर्चा मदई मुलजम मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं, किसी का जमात अहमदिया से इसका लेना देना नहीं। तो उनकी बादशाह सलामत, ये बात आपने की थी उम्मे रबाब से, वहाँ पे बैठ के इसी भी चीज के ऊपर दे रहे थे ना बात उनको कि ये गुस्ताखी नहीं है, हजरत अली की ये सुन्नत है, यही सब कुछ तो वहाँ पे भी हो रहा था। वहाँ पर गुस्ताखी की कोई बात नहीं हो रही। साहिल भाई मान जाए आप, वहाँ पर गुस्ताखी रिकॉर्डिंग सुन लें पहले पूरी, अहमद जाट की और मेरी 1 घंटे की या 40 मिनट की होगी रिकॉर्डिंग, उसमें गुस्ताखी की कोई बात ही नहीं है, गुस्ताखी का कोई जिक्र ही तक नहीं है। एक दफा शायद उसका पोस्टर क्या था, पोस्टर क्या लगा हुआ था उसका? पोस्टर तो वो कई दिन से हमारे खिलाफ लगा के बैठे, हमें हमारी जूती को भी नहीं परवाह। वो तो एक फिक्रा इस पूरी गुफ्तगू में आपको मिलेगा गालबन। अहमद जाट ने सिर्फ एक बार कहा था कि क्या ये हजरत अली की तौहीन नहीं है, तो मैंने उसको कहा इससे आपका लेना देना कोई नहीं। बाकी 40 मिनट की गुफ्तगू में ना कोई सफाई है ना कोई गुस्ताखी का जिक्र है वहाँ। उनका क्या काम है कि वो हमसे गुस्ताखी की सफाई मांगे? यार ये सिंपल सी बात है। मिर्जाइयों की जुबान खींच के कुत्तों के आगे डाल दो अगर वो किसी मुसलमान को कहें कि भाई आपने गुस्ताखी की है, उनका क्या ताल्लुक इस बात से? वो मदई बन सकते हैं इस मुकदमे के? नहीं, आज तो मैं बने नजर आया, अहमद जट तो बना नजर। सुन लें, अगर वहां पर कोई ऐसा मामला आपको दिखाई दे तो वो हिस्सा मुझे काट के वीडियो भेज दें। ना वहां पर गुस्ताखी का कोई जिक्र है और ना ही किसी ने कुछ सफाई दी है गुस्ताखी। अबू बकर भाई कर लें जो बात आप करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अमर भाई सिर्फ वही बात करना चाहता था कि जहां तक वो ट्रुथ सर्चर साहब का जो ब्रांड लगाना था ना, वो तो आपने ऑलरेडी जो बताया है बिल्कुल ऐसे ही हमने भी वहां पे जाके यही बात की थी, क्योंकि वहां पे हमारे चंद मुसलमान भाई थे जो के साथ मिल के, मतलब कि जैसे बहन भाई होते हैं और वो लगाते हैं ना, ब्रांड लगाते हैं एक इस मामले के ऊपर,
तो अगर उन्होंने आजम सैफी के लिए लगाई तो वो भी उन्होंने एक अपना फर्ज अदा किया, और हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, वो बिल्कुल करें। और अगर उन्होंने सियाल जहांग की वजह से लगाई तो वो भी उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, वो बिल्कुल लगाए। लेकिन असल में उनके यहाँ तो शातमीन की कोई सजा है ही नहीं, तो हक भी नहीं बनता उनका कोई ऐसी ब्रांड लगाना, लेकिन उन्होंने लगाई अपने तौर पे, वो बिल्कुल लगाएं। तो हम जो मुसलमान हैं, हमारा तो ऐसा काम नहीं है कि हम उनके साथ बैठ के और बिल्कुल इसी तरह से हम ब्रॉड एक लगा के बैठे और वहां पे ऐसा एक माहौल क्रिएट करें जैसे कि हम आपस में मुसलमान बैठते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, और यही वहां पे रीजन था वो बात करने का भी, और वो बात सामने आई भी। जब मैं गया वहां पे ब्रॉड पे तो ये बात सामने आई, जब मियाँ 49 ने आके मुझे गालम गलोच करके उसने नीचे उतारा, तो उस वक्त उसने ये बात कही, उसने कहा ये बात कि आज इनसे कमेंट लें, आज इनका मामला है, इनसे कमेंट लें। उसने वो शो किया कि ये ब्राड उसने स्पेशली लगाई ही फेस सेविंग के लिए थी, और फिर इसी बात के ऊपर दैट वाज ए प्रूफ ऑफ योर मौकफ। जी बिल्कुल, आपका जो मौकफ था ना, ये उसका सबूत है। जो मियाँ फेवरेट 49 ने वहां पर आकर बात कही थी ना, ये इस बात का सबूत है कि वो ये चाह रहे थे कि आज मुसलमान सफाइयां दें यहाँ पर, हाँ जी, और वो मुसलमान बिल्कुल मेरी बात करने पर वो बात सामने आई थी। जी जी, वो तो अल्लाह आपको अजर दे, आपने हिम्मत करके वो सारा शहर तोड़ दिया, वो सारा शीशा चिकना चूर हो गया। और वो आमर दुश्मनी लोग जो कह रहे हैं वो जी फिरके के लोग आ गए थे तो उन्होंने आपकी बराड नाकाम बना दी, फिरके के लोग आ गए थे। अल्लाह जी अमर भाई, मैं यही कहने वाला था कि अफसोस मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने अपने ही एक मुसलमान भाई को ये कहते हुए सुना कि वहां पे चंद जाहिलों का एक टोला आ गया, एक फिरके के लोग वहां पे आ गए, उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया और इसका रुख मोड़ दिया। मियाँ 49, आपकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, 49 आपकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो जाहिलों का एक टोला आया, उन्होंने आके तस्वीर का रुख चेंज कर दिया। ये बात सुन के साहिल भाई बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन हम बात करते नहीं है, हमारे दिल में भी तकलीफ होती है। जी, ये है वो रेड लाइन जो हमने पिछले हफ्ते भी अबूर होते देखी, तो यहाँ पर जो हल्ला गुल्ला हुआ है ना, ये वो रेड लाइन है कि जब कोई मुसलमान किसी मिर्जाई के साथ बैठकर अपनी ब्राड लगा के हमें गालियां दो, 101 गाली दो, कोई मसला नहीं है, मिर्जाई के साथ बैठकर हमें गाली दोगे, खुदा का खौफ करो, डाइजेस्ट करें। और देखिए ना, ये मियाँ 49 को ये कहना, अमर भाई, मियाँ 49 को ये कहना कि मुझे आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आपने जो ब्राड लगाई थी, आपकी नीयत जो है उस पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उस जाहिलों के टोले ने, एक फिरके के बंदे ने आके तस्वीर का रुख चेंज कर दिया और सारा मुद्दा जो आपके ऊपर गिर गया। तस्वीर का रुख इस तरफ चला गया कि ये फेस सेविंग के लिए हो रहा है सारा काम। तो ये बात की तकलीफ दी और हमने आज तक ये बात नहीं की। 25-25 मिनट की वहाँ पे लोगों ने डिबेट्स की हैं, उन्होंने सफाइयाँ दी हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ के, हदीस मुबारक पढ़ के सुना के ये बहुत जुल्म हो गया, बहुत बुरा काम हुआ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। और भाई होना नहीं चाहिए था, ये किसके सामने हमने बात करनी, जो लोग खुद कर रहे हैं। इससे बड़ी शातमियत क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर कोई बंदा ये कहे कि मैं वैसे तो एहसानी हूँ, वो नबूवत का दावा करके बैठा है, उसके मानने वालों को हम कह रहे हैं कि यार देखो कितना जुल्म हुआ, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हें ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे मुसलमान भाई ने बहुत बुरा किया। अभी 2 मिनट पहले हम उसको कह रहे थे, और लानती हो गुस्ताख के मानने वालों, गुस्ताख हो, मेरे नबी की गुस्ताखी करते हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान के मुकाबले में एक लुल्ले लंगड़े दज्जाल को लाके खड़ा करने की कोशिश करते हो, दज्जालो, झूठो, मक्कारो। 2 मिनट बाद उसको मैं कह रहा हूँ ओ हो आई एम रियली सॉरी, बहुत दुख हुआ मुझे, मेरे भाई ने शातमियत की, मैं बहुत इससे नादा हूँ, बड़ी शर्मिंदगी हुई बहुत मुझे। भाई ये कोई बात है यार करने वाली, कोई अक्ल के नाखून लो यार। और फिर बाद में जाके कहते हो जाहिलों ने तस्वीर का रुख मोड़ दिया। ये कौन से डबल स्टैंडर्ड है आपके, 2 चेहरे हैं। नहीं यूसुफ भाई, ऐसा है कि यहाँ पे 2 बातों को मिक्स ना करें, यहाँ पे 2 बातों को मिक्स ना करें, ना तो 2 बातों को मिक्स किया जा रहा है, ना तो एक मिनट अबू बकर भाई, 1 मिनट प्लीज।
ये जो बात है ना, 2 बातों को मिक्स किया जा रहा है या 3 बातों को मिक्स किया जा रहा है, 3 या 4 बातों को मिक्स, ये हमारे जज्बात हैं भाई, ये शायद आपके भी ये जज्बात हो। अगर कोई बंदा कोई किसी गलत राह पे चल रहा है या उसको नहीं समझ आ रही, तो डेफिनेटली हमने एक दूसरे को इस्लाह करनी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मिर्ज़ई और ये कुफार दज्जाल के सामने जाके हम इस चीज़ को वेरीफाई करते रहें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले को आपने इंसाफ देना है या आपने उसका फैसला करना है, आपने सजा जजा देनी है। हू द हेल आर यू? आपको तो हम मानते नहीं है, किसी गिनती में नहीं गिनते, तो हम ये आपके तो सामने आके क्यों ये यही बात तासर करें? जा रहा है ना यूसुफ भाई, आपकी बात से यही तासर जा रहा है कि वहाँ पे जो मुसलमान गए थे वो मुकदमा मर्जियों के आगे रख के बैठे थे कि आप सजा दे। वहाँ पे कौन मुसलमान था जिसने ये बात कही कि जी हम ये मानते हैं कि इसने गुस्ताखी की, अब आप सजा बताएं इसकी? किसने कहा था वहाँ पे? वहाँ पे ये बात करने की क्या जरूरत थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कुरान पाक ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया, इसके बारे में क्या फैसला किया है, उसके उनको क्या बताने की जरूरत है? आप खुद बताएं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप करते रहे वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ या वहाँ पे कोई भी बंदा वहाँ पे ये नहीं कहने गया था उनको कि जी आप यहाँ पे जो अदालत लगा के बैठे हैं, हम अपनी तरफ से ये मुकदमा आपके सामने रखते हैं कि जी इसने शातमियत की है, अब आप सजा दे। वहाँ पे ऐसा किसी तरह से भी मुसलमान बैठ के ये काम नहीं कर रहा। अच्छा साहिल भाई, ये साहिल भाई जो बात आपको मैंने अभी बयान की है, इससे क्या जाहिर होता है कि वहाँ पे क्या हुआ था? ये जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी है, यकीन करें ये बात मैं पहली दफा, ठीक है, मैंने ना ये बात पहली दफा कर रहा हूँ आपके साथ। सुने तो सही ना जी। उससे पहले जो नीचे कमेंट आ चुके थे कि यहाँ पे समझदार मुसलमान बैठे, जहाल मुसलमान बैठे हैं, समझदार मुसलमान निकल जाएं, दूसरे मुसलमान के लिए ये क्या था? यार ये ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए। 1 मिनट, ये बिल्कुल सही कहा कि ये जहालत है ना मेरे भाई, जाहिल भाई, ये जहालत है ना, एक काने दज्जाल के मानने वाला के सामने जाके हम अपनी सफाइयां देना शुरू कर दें। तो ये भाई अगर आप होते तो आप यही कहते। जहालत आज भी हुई है। क्या जहालत हुई है? आज क्या हुई है? आज भी तो बैठ के वही कुछ हुआ है। उसको सफाइयां देने की कोशिश की है कि नहीं मैंने नहीं कोई गुस्ताखी की, और मैं आज वो हदीस आज या जो ये बहुत गलत हुआ। किस बात के ऊपर दिया जा रहा है? नहीं अच्छा, एक मिनट मैं ये हमने भी बात सुनी है जब ये वहां पे आज आमिर भाई, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मैं जुमला कहता हूँ भाई, ये मेरा साहिल, मैं आज भी जो बात हुई है उसको रूहानी खुजाइन उसके सामने पेश की, कुरान और हदीस ने पेश की उसके सामने, हमने जाके अपनी सफाइयां नहीं जाके दी आमिर भाई ने उसके सामने, रूहानी उसको नहीं सुनने हुई। क्या था वो? उसको सफाइयां देने गए थे या उसका मुंह काला करने के लिए गए थे? तो मेरे भाई ये जो बात है इस बात के ऊपर कि हाँ ये जो मुंह काला करने के लिए गए थे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, इस बात के ऊपर मुंह काला करने गए थे, क्या नहीं इस पर नहीं, अगर तो ये बात की हो कि जी ना करें, ये कोई मतलब खामखा का इल्जाम ना लगाएं, आपकी मेहरबानी है, इस तरह की कोई बात नहीं। मैंने कहा आप दोबारा वो वीडियो सुन लें, आपने रिकॉर्ड की, हाँ वो सुन के आप देख लें, पर कोई सफाई वाला गुस्ताखी का इल्जाम और उसकी कोई सफाई का कोई चक्कर नहीं है। वो बार बार कह रहा था मैं हदीस को समझना चाहता हूँ कि आपने ये जो बात कही है ये सुन्नत का क्या मतलब है, सुन्नत कैसे हो गई, ये वो बात बार बार पूछ रहा है। सुन ले पहले। तो और जस्टिफिकेशन दे रहे थे ना आप, वो सुन्नत अच्छा की ही जस्टिफिकेशन दे रहे थे। साहिल भाई मेरी बात सुने, मैंने जो अभी बात आपको बयान की है ना, ये मैंने कभी भी किसी ब्रॉड के ऊपर ये बात नहीं की, कभी भी हमने किसी के सामने बैठ के ये बात नहीं की, हालांकि ये मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है बात, और हमने पर्सनल में इसके ऊपर डिस्कस किया था। मैंने अमर भाई से भी बात की कि अमर भाई ये ऐसा मामला है, तो हमने वो बात छोड़ दी। क्यों? कि हमारे मुसलमानों का ये मसला था और हमारे एक मुसलमान की ही ये बिस्ती है कि उसने ऐसी बात की वहां पे, और वहां पे सफाई देने की, मियाँ 49 को अपनी ब्रॉड पे बुला के सफाई देने की कोशिश की। ये आज पहली दफा मैं ब्रॉड के ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ, पहली दफा। लेकिन साहिल भाई ये आप भी सोचें, अबू बकर मीर भाई हम इस तरह से सामने आके उसी दिन की रिकॉर्डिंग आ गई, उसी दिन जब इन्होंने आपकी ब्राड होती, जिया रसूल की ब्राड होती, आमर नजीर साहब की ब्राड होती, यूसुफी की ब्राड होती, वहां पे आके वो बंदा आपके सामने ये केस रखता, मैं अल्लाह की कसम में कभी ना बोलता। उनकी ब्राड पे जाके वहां पे जस्टिफिकेशन देना इस बात की कि हाँ वो सुन्नत थी या नहीं थी, इसके ऊपर आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आप गलत है, ये क्या बात हुई? काम तो वही भी आप अच्छा आप देख ले, सिर्फ आप अकेले को ऐसा लग रहा है, बाकी आपको 2 3 4 बंदे फिर अपने साथ मिला के आप ब्रॉड लगा लें हमारे खिलाफ। भाईजान अगर तो 2 4 3 बंदे मिला के साथ करना हो तो मेरे में तो बादशाह सामक में फर्क क्या रह गया फिर? ओ ठहर जो साहिल कालू भाई, ठहर जो की हो गया, छाड़ दियो यार साहिल कालू भाई।
हाँ जी, हाँ जी। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਕੜੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। मैं नहीं, बादशाह साहब इल्जाम हम तो नहीं लगाते, ये तो बादशाह सलामत का काम है लोगों नहीं मतलब अगर नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਹੈ ਲਾ ਲਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ना बादशाह सलामत हम ऐसी जिसारत नहीं कर सकते। नहीं साहिल भाई हम ऐसी जिसारत बादशाह सलामत के सामने साहिल भाई इस हकीकत को समझिए कि सिवाय आपके अभी तक ये इल्जाम किसी ने लगाया नहीं, तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो कभी भी नहीं कर सकते कि इल्जाम लगाएं। ये नहीं साहिल भाई ने भी क्यों लाना है इल्जाम कोई? वही ना, अभी तक तो किसी ने नहीं लगाया सिवाय साहिल भाई के। कोई तो नहीं लगाना चाहते हैं आप लगा लें। अबू बकर भाई कोई नहीं लांदा, ना ही साहिल भाई लांदे, ना कोई और लांदा है। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ, बल्कि ਕਰ ਦਿਓ। मैं तो कहता हूँ बल्कि ग्राउंड पे बैठ के तो इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। मदारी चला दो। लो जी सप निकलने लगा, लो जी इसके आगे सप निकलने लगा, इसके बाद सप निकलेगा थोड़ी देर। यार एक तरह एक चले कम अज कम हम हमने सांप निकाले हैं और सांप निकलने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ रूहानी खजाने उसको बराबर मानो के ग्रोह आपस में लड़े हैं और एक दूसरे को गालम गलोच नहीं किया किसी ने। ये हुआ है कि हमने सांप जितने मर्जी निकाले हों या ना निकाले हों, लेकिन मुसलमानों के लिए जग इंसाई नहीं करवाई कि बैठ के एक मुसलमान दूसरे को नंगी माँ बहन की गालियां दे रहा है, दूसरा उसको दे रहा है। ये काम हमने नहीं किया। किसी को दी है माँ बहन की गाली तो आप बताएं भाई, वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़्र उख़रा, हमने किसको गाली दी है? किसी को कुत्ता भी बोला तो बताएं। माँ बहन की गाली तो बड़ी दूर की बात है। हमें गालियाँ किसी ने दी हैं तो हमें पहले भी आप जैसे भाइयों ने दी हैं, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, असल में आपके यहाँ वो गाली जो आप दें वो गाली नहीं ना होता, मसला ये है। जो भी कौम की बात को शिकस्त खुर्दा कहता है वो आस्तीन का सांप होता है, ये गाली तो नहीं, ये तो हकीकत हाल का बयान करना है, ये गाली है। तो जो करता है वो भी तो अपनी तरफ से हकीकत हाल बयान कर रहा होता है ना, उसकी हकीकत हाल गलत है, आपकी हकीकत हाल सही है, ये भी तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मेरी बात, किसी को माँ बहन की गाली देना, कुत्ता बिल्ला खंजीर कहना, ये गाली होती है। क्यों? कोई इंसान कुत्ता नहीं होता, कोई खंजीर नहीं होता, लेकिन वो आस्तीन के सांप होते हैं जो कौम के मजमूई मफाद के खिलाफ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती है ना, अब यहाँ पर कोई बंदा अपने आप को किसी सियासी जमात से वाबस्ता करता हो, वो लानती उठ के सवेरे कहे कि पाकिस्तान को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई इंडिया, आप क्या कहेंगे उसको? आस्तीन का सांप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं गोतरा की बराड़ पे गया, वहां पर दो, एक बलोची और एक अफगानी मुझे कहने लगा, ओए तुम्हारी पंजाबी की बहन की माँ की हमारे साथ बात करो, तुम गोतरे के साथ बात करने से पहले हमारे साथ बात करो। अब मैं उसको क्या कहूँ? आस्तीन का सांप ना कहूँ? ये आस्तीन के सांप हैं जो आपकी पूरी कौम को गाली देते हैं और दुश्मन के घर में बैठ के, ये नहीं कि फिर अकेले घर में बैठ के देनी। दो तो मसला तो यही ना, जो आस्तीन के सांप हैं उनको लेके उनके गंद के अंदर कंकर मार रहे हैं, छींटे पड़ रहे हैं, तो छींटे पड़ने हैं। अब उससे आप कहें कि नहीं अब हमने तो कुछ नहीं किया, समझ नहीं बात। जिनको आप आस्तीन का सांप कह रहे हैं वो गंद है ना, गंद के अंदर कंकर कौन मार रहा है? आप ही तो मार रहे हो भाई। हमने कभी कंकर नहीं मारा, अब उन्होंने बहुत ज्यादती की है। मैंने आपको कहा है कि जो मामलात कौमी मामलात होते हैं ना, साहिल भाई बात को समझने की कोशिश करें। मुसलमानों की फतह को कोई बंदा, आप या मैं भी, अगर शिकस्त खुर्दा करार देंगे, मैंने पहले कहा मेरे पर यही फतवा लगता है, आप मुझे गोली मार देना, मेरा खून माफ, सब मुसलमानों पर। अगर मैं ये हरकत करूं, मुसलमानों को शिकस्त खुर्दा, जिस तरह इंजीनियर ने कहा, लानती ने, ये आस्तीन का सांप है। जिसने ये कहा कि वो क्या नाम था इनका, इम्तियाज भाई के साथ वो दूसरा इंग्लैंड वाला, यार क्या नाम है उनका, अदनान रशीद। बात की है, इनको बात नहीं मज़ाहियों के सामने करनी, लानती है ये आस्तीन का सांप है जो मुसलमानों को इस तरह की बकवास करते हैं। लेकिन उसको फिर भी आप दे सकते हैं फेवर कि वो घर में बैठ के अपना जहर उगल रहा है, घर में बैठ के गाली दे रहा है। जो मिर्जाइयों की बराड़ पर चढ़कर हमें गाली देगा और कहेगा कि इमरान खान जीता हुआ है और ज़ियार सुल हारा हुआ है, वो तो तारक चौहान ने फैसला गलत दिया था, तो हमने तो भाई भी शर्त लगा के एक किस्म का इनामी रकम जीती हुई है, उसके लिए बड़ा रिस्क लिया हुआ है और बड़ा उसके लिए टेंशन देखी हुई है कई रोज तक। तो जो बंदा मुसलमानों को इस तरह की गाली देगा भाईजान, वो आस्तीन का सांप है। अगर ये गाली है आपकी नज़र में, तो मैंने ये 3-4 मिसालें दी, आप इन लोगों को क्या कहेंगे?
और फिर नहीं, एक नहीं, और बात आस्तीन मैं का साहिल भाई सांप- एक मिनट साहिल भाई एक मिनट साहिल आस्तीन का भाई सांप मैं की एक चीज गाली और आपको नहीं क्लियर है। कर दूं, एक बात सुन लें, जोशी एक भाई बात एक सुन मिनट, लें, जोशी भाई एक सेकंड। एक मिनट सुन ले, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये जो जिस चीज को आप कह रहे हैं कंकरी फेड़ के गंद उछालने की कोशिश की है, वो ब्रांड इसलिए भी नहीं लगी थी जब ये गुफ्तगू हुई है लास्ट टाइम, ये इसलिए नहीं हुई थी कि वो उन्होंने इस क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये मौकफ वहां पे हमने नहीं अपनाया। ज़िया भाई ने उस औरत को लिया था कि उसने हदीस मुबारक पर बोतान लगाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कौल के ऊपर उसने ये बात कहने की कोशिश की कि नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो दो हदीस मुबारक हैं वो कंट्राडिक्ट करती हैं आपस में। उसको ये बात समझाने के लिए कि बीबी जो तुमने ये वहां बात की है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान है, सीधा सीधा तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अगर हदीस मुबारक का इल्म नहीं जानती तो तुम्हें ऐसा बयान नहीं। ये गुफ्तगू यहां से शुरू हुई थी और वो बढ़ती बढ़ती और बढ़ाई उसने, हमने नहीं बढ़ाई। उसको सिर्फ हदीस मुबारक पर बात करने के लिए बुलाया गया था बस, उसके अलावा उसने शुरू की है बात सारी। वो शर्त थी ही इस बात पर। आस्तीन किबला आस्तीन के सांप भी गाली नहीं है, फुद्दू मुसलमान भी गाली नहीं है, जाहल मुसलमान भी गाली नहीं है। अगर यही कोई हम में से या कोई दूसरा मुसलमान उठ के आपके बारे में कह दे तो वो हो जाता है तफरका डालना और मुसलमानों को लिए जग हंसाई बनवाना। ऐसे ही है किबला? नहीं, इस तरह नहीं है। अरे भाई बात यह है कि अगर आप अपनी ब्राड पर इससे भी सख्त लफ्ज कहेंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरी तस्वीर लगा के मुझे मेरे माँ बाप को गालियां मुसलमानों ने दी हैं, मैंने कभी कहा है देने दो, आप भी दे लो। मैं उस वक्त मैं कह रहा हूँ कि जब आप मिर्जाइयों के साथ मिलकर मुझे आप कुछ भी कहोगे, कोई भी गाली दोगे या मेरे भाई को दोगे, तो वो है रेड लाइन, वो है गद्दारी कौम से। क्या आप दुश्मन के साथ मिलकर अपने मुसलमान भाई पर हमला करें? साहिल भाई बात को समझने की कोशिश करें। नहीं तो ये फुद्दू मुसलमान कह के ये मर्जियों के लिए जग हंसाई नहीं बनाया हमने, आपने हम लोगों ने। यार ये मैंने ही कहा है ना, आप मुझे दो किसको कहा है? मैं किसको कह रहा कहा हूं, आपने? मुसलमानों की कहा ना आपने? अपने घर में, हाँ, ऐसे जाहिलों को कहा है जो इस खतून को समझते हैं कि ये मुसलमानों की नुमाइंदा, उनको मैं कह रहा था। इसी तरह के और हैं कई फुद्दू मुसलमान जो अपने आप को वो समझते हैं कि हम मुसलमानों का बड़ा मुकदमा पेश कर लेंगे। लेकिन बात समझने ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक तरफ तो एक रखते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी बात के ऊपर आप जो तवीले करना शुरू कर देते। ये काम आपने कब से शुरू कर दिया किबला? कौन अबू रार साहब, जरार नाम म्यूट करें अपना। तवील शवील हमने नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई दो मुसलमान, कोई भी मुसलमान दो लड़ते हैं, उनमें से एक गालीबाज है, एक गालीबाज है, दूसरा गालीबाज नहीं है। जो गालीबाज है वो अपने मुसलमान को भाई को गाली देगा, माँ बहन की नंगी गालियां देगा, सारा कुछ दे ले, लेकिन अपने घर में बैठ के देना। अपने घर में बैठकर अगर वो गालीबाज है और गाली उसकी खुराक है, गाली उसका नशा है, तो वो गाली दे ले अपने घर में बैठ के। लेकिन ये तो ना करे कि मिर्जाइयों की ब्राड पर चढ़कर जाकर मुसलमानों को उनके साथ मिलकर गाली दे। अब भी यानी मर्जियों के यहाँ पे बैठ के आप जो मर्जी कुछ नहीं कहना, आप अपनी ब्राड पे मुसलमानों को जो मर्जी कहें जस्टिफाइड है। जो भी बंदा अपनी ब्राड पर अपने मुसलमान भाइयों को गाली देता है ना, मैं उसको ये तो नहीं कह रहा कि मैं सर्टिफिकेट उसको इशू कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो गालीबाज है तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी तो खुराक है गाली देना, उसको देने दें, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप भी बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो खैर है, ये गालीबाज है, इसने गाली ही देनी है। लेकिन नहीं, गालीबाजों को तो हमने भी आपके सामने ये बड़ा बर्दाश्त किया हुआ, हमने तो उनको नाम लेना भी पसंद नहीं किया। और ये जिस गंद के बारे में आप यहाँ पे जो तमाशा हो रहा है, उस गंद ने हमें भी गालियां निकाली हुई हैं, हमने तो आज तक नाम भी नहीं लिया, उसको पुकारा भी नहीं कभी। यही जो गालीबाज लोग हैं ना, अगर ये मिर्जाइयों की ब्राड पर जाकर चढ़कर आपको गाली देंगे या मुझे गाली देंगे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, असल में आमिर भाई ये पता है क्या साहिल भाई, अगर आपके भाई के ऊपर बात आई होती ना तो शायद आपको तकलीफ होती। हमारे भाई के ऊपर बात आई है तो इसलिए हमें तकलीफ हुई है, तो हमने इसका जवाब दिया है। अबू बकर किस भाई के ऊपर? किस भाई के ऊपर? किस भाई के ऊपर? ये बात अबू बकर मीर साहब आप गलत बात कर रहे हैं। अबू बकर मीर भाई, ये भाई की बात आपने कहाँ से निकाल लिया? किसी भी जीते हुए, यार बात सुने, किसी भी मुसलमानों के मौकफ को कोई बंदा भी कहता है ना, मैं कहता हूँ अगर मुझे ही इस जगह पे आप कभी देखे ना पाए ना इस मुकाम पर, तो मेरे लिए भी यही फतवा है कि मैं आस्तीन का सांप हूँ, मैं गद्दार वतन हूँ, गद्दार कौम हूँ, गद्दार मिल्लत हूँ। अगर मैं गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर बैठकर मुसलमानों पर हमला करता हूँ, जुबान से, हाथ से, तलवार से या किसी भी तरह से, किसी भी मुसलमान पर, वो जहाँ
जाके बैठ के वो मिर्जाइयों के साथ बैठकर गाली देने का और मुसलमानों को बुरा भला कहने की क्या जरूरत? आप अपने घर में बैठ के दे लें गाली। वो कई सालों से दे रही है, पहले भी वो देती रही है गालियां मुसलमानों को, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। ज़िया भाई एक दफ़ा गए थे, इनके पीछे मैं गया था, वो मेरा रिकॉर्ड टूट गया, वरना मैं तो कभी उसकी बरात पे चढ़ा ही नहीं जिंदगी में। ये एक दिन किसी से लड़ रहे थे वहाँ पर, तो मैं वहाँ इसके पीछे गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपनी बरात पर इस तरह की हरकतें करे तो कोई मसला नहीं। अगर वो अपनी बरात पर मिर्जाइयों को बुलाकर मॉडरेटर बनाकर मुसलमानों को गालियाँ दिलवाए, या खुद मिर्जाइयों की बरात पर चली जाए और वहाँ पर जाकर मिर्जाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों को गाली दे, ये है वो गद्दारी। कौन सी? हाँ हाँ, नीचे अबू कमेंट आ बकर रहे हैं कि आप बादशाह बताइए सलामत, ना, ये आप जो अपने आपने भाइयों से बात जलते की है हैं। ना, ये जो आपने बात की है कि आपके भाई के ऊपर बात आई होती तो आप बोलते ये चलो इस हमारे बात को भाई के छोड़ ऊपर दे, बात इस आई। मामले को छोड़ ये दे। बात करने से पहले ना आप थोड़ा सा सोच लेते कि मैं बात क्या करने लगा हूँ, और जिस भाई की आप बात करें ना वो आपसे ज्यादा ही भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। उस बात के ऊपर आप ना ही बोले तो अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। ਓ ਯਾਰ ਓ जी ਯਾਰ मुझे भी मौका दीजिएगा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? भाईजान मैं भाई समझता हूँ और समझता हूँ तभी इधर आके बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई ना कि आपके भाई के ऊपर आई होती, ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ इसके ਸੁਣ ऊपर ਸਾਹਿਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਭਰਾ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਬੂ ਸਾਥੀ। ਬਕਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਅਗਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। 54-55 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਜਿੱਦੂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਲ ਕਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮਸਲੂਬ ਸਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਦੂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋ ਮੰਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਵਹਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ भाई अब ये ना ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ज़िया भाई मौजूद है यहाँ ਉਹਦਾ पर। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ मैं ਜਾਂਦੇ। खाना ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਮਾਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੋ। ਬੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਲਿਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਫਤਵਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਕਤ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਕਿ ਕੰਬਲ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੀ ਅਟਕਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अबू बकर साहब एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट साहब। अबू बकर साहब यहाँ पे बात पता है क्या हो रही है? ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, आपके भाई होते या कोई और होते, ये बिल्कुल गलत बात थी। जिस कॉज के लिए हम सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी तरफ से, मेरे चले कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मेरे वालिद साहब भी होंगे, और अगर वो गलत काम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर बताना हम लोगों का इनका क्या तारुफ है? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ। चलो कोई गल नहीं। उनको मैंने उठाया था। अच्छा चलो सही है, मेरा भाई है तो मैंने उठाया था, तो ऐसा चुक लो फिर दोबारा चुक लो, कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन गल है बाकी बादशाह सलामत की जो बात थी उसके ऊपर तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अबू बकर मीर भाई मैं आपको इतना सिर्फ कहूँगा कि आपकी बात के ऊपर इतना कहूँगा, आपको नहीं कहूँगा, आपकी बात के ऊपर कहूँगा कि कौन किसका भाई है और कौन किसका भाई है, ये मौसमी खत्म नबूवत ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੋਣਾ, ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰਾ ਰੋਣਾ, ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੋਣਾ। ਵੇ ਰੋਂਦ ਬੜੀ ਰੋਂਦ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਰੁੱਸਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਧੋਂ ਮੇ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ, ਅਸਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਜਾਹਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਉਹ ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਕਾਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ ਅੰਧੋਂ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਰਦਈਆਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਿਗਰੀ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਰੌਲਾ ਢੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਇਲਟੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ
इन्हें कहना जी मैं बड़े बड़े लोगों से मेरी बातें होती रहती हैं ट्विटर पे, बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से, बड़े बड़े सियासतदानों से, मीडिया पर्सन से मेरी अक्सर उनसे बात होती रहती है और बड़े अच्छे माहौल में। देखें अमर नज़ीर साहब, आप जानते हैं मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा ये तरीका नहीं है, मेरा ये म्यार नहीं है। मैं इंज फड़ा लग गया होंदा छड्डण यकीन कर बस अब आपके साथ बात जिथे देख लो आपके साथ जी। बात ही नहीं होगी। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਟੇ? नहीं अजीम भट्ट ते वाकई अजीम भट्ट है ना, वो ते अजीम तरीन अजीम भट्ट है भट्ट ना। होर शै है, ये खाली भांडा, ये खाली भांडा जिन्हें मैं खड़कना हुंदा वा ते मट्ठा मट्ठा हल्के हल्के सीके ते खड़कदा रहिंदा। मनाजरा होया दा इन्हां दा। ये ते 29 तरीक ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਖੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਉਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं उन्हें बहाना मारना मेरी कोई जरूरी मीटिंग आ गई है, कोई कंपनी दी आ गई है, तो कोई फलाण दी मीटिंग आ गई है, तो मेरा शेड्यूल नहीं फ्री है। उस दिन वेख्या की कर रहा सी, जो अमर भाई ने पूछा ना कि भी दस ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं डायरी देख के बताऊंगा। तो नाले कहने लगा ये ना समझना कि मैं कोई अपने आप में बन रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। भी दस वैसे ही सानू पता वा चोर नूं काने नूं अपनी खानू पता खुड़क जांदी है ना। ओ मुसलमानो, ओ मौलवियो, ओ खुदा दा खौफ करो, इस बंदे ने मैनू डिबेटर बनाया है। ਇਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਜਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਜਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ? ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੈਦਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਡਿਬੇਟਰ ਵੀ ਐਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ये राजे ने राजा ओ मेरे को रिकॉर्डिंग है, ओ मेरे को रिकॉर्डिंग है मीर सलीम दी भी। अच्छा वही कह रहा कि जियो राजा साहब जियो, सिर्फ डिबेटर नहीं बनाए। नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਮਸੀਲੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। वाह ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, मसीले अमर नज़ीर राजा जवेद नज़ीर कर लो यार। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਹਿਰ 139 ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹ ਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। वाह वाह वाह, क्या बात है। आईडी का नाम मेरा सी ते डीपी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं ना हुई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं ना हुई हले ओदी वलीद दी, तां वास्ते तुसी चल रहे हो।
ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਲਵੋ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ? ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਅਨਟੱਚ ਹਵਾਲੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਵਾਲੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਖੜੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਈਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਕੀ ਬਾਈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਉ ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟਿਕ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਟਿਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਾ ਦੇ ਸੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ 2 ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਮਰ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਜੇ ਪਿਆ? 2 ਮਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਤੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੀ ਘੁਮਿਆਰ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਮਨ ਸੋਡੇ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਮਾਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਚ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਖੌਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ मौलवी साहब। तलत भाई वापस नहीं आएंगे टिकटॉक पे अब? तलत भाई नहीं आया। तलत भाई ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਉਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਪੀਰਸ ਕਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗੜ ਬੱਗੜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੱਟ ਮੱਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਵੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤਿਫਲ ਤਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਅਤਾਰ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਣਾ ਇਹਨੇ 49 ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ? 49 ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਵਲੀਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 49 ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਜ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ 49 ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰਾ ਸਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬੈਠਕ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਾੜੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਣਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜੇ 0%। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ 49 ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੋਹਤਰਫ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਰਫ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਆਂ 49 ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਰਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਐਸੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਮਰ ਹੱਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮਰ ਹੱਕ ਦੀ। ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਚੌਧਰੀ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਲਦ 23 ਸਫਾ 266 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਲਦ 23 ਰਵਾਨੀ ਖਸਾਨ ਜਿਲਦ 23 ਸਫਾ 266। ਜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਰਾੜ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਯੁੱਧਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਉਤੇ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਯਾਰ ਸੁਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਫ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ 100% ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਮੂਚ ਵੀ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਲਦਾਰ। ਵਾਹ अब बादशाह सलामत खिताब करना चाहते हैं। बा मुलायजा होशियार। थोड़ी देर रुक आए ने अपना खलीफा यदुल्ला साहब आए ने जो चुकना जैसे, लेकिन मैं थले छड़ देना जो पहले कहता सी कितने ने खलीफा साहब उत्ते खलीफा साहब नु उत्ते लवो मैं इन्हां नु थले सटा।
ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾੜ ਮਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ। चौधरी 2 मरले का हमारे इल्म में तो इस तरह का कोई हवाला नहीं, बाइबल को रद्दी की टोकरी तो नहीं कहा, चलो ले लो आलम थले पे बहना, अहादीस को कहा था। अमर भाई है वे बाइबल वाला आहो दे दो उन्होंने वाला ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਝੂਠ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। अच्छा अच्छा, मैं क्या बाइबल में बताया लगता है रद्दी की टोकरी। अच्छा, मैं खाना खा रहा सी ते तुहाडी गुफ्तगू च ना